Next question on admission of partner. Important one, pay attention. A and B share profits in the ratio of 3:2. So your old ratio is 3:2 and then you have been given the balance sheet. Goodwill nahi hai balance sheet mein. C was admitted in partnership on the following terms. Prepare revaluation, partner's capital and balance sheet. C should bring 50,000 as his share of goodwill which is to be retained in business. So सबसे पहले देखो केस 1 कैश में गुडविल आ रही है. कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 50,000. He will bring rupees 40,000 as capital for 1/4 share in future profits. So C का नया शेयर दिया है उन्होंने, that is 1/4. ओके, सो देखिए हमको न्यू रेशियो यहां पर चाहिएगा. Why? I will explain it to you. See 40,000 ये this is revaluation के points. Then come up to the 6th point. The excess of capital of A and B over their due proportion of sharing profits in the firm. यानी न्यू रेशियो में वो जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं उसके अलावा जो एक्सेस कैपिटल है इन द फर्म इज टू बी ट्रांसफर टू द रिस्पेक्टिव लोन अकाउंट्स. मीन्स मुझे न्यू रेशियो चाहिएगा, तभी अकॉर्डिंग टू दैट न्यू रेशियो ओनली आई विल बी एबल टू कैलकुलेट कि ए और बी का क्लोजिंग कैपिटल कितना रखना है. I have the old ratio 3:2. Now C is coming for 1/4 share. So to find out the new ratio, what should I do? For 1/4 share C is coming. So left over is 3/4. So A का मैं बोल सकती हूँ 3/5 है and B का 2/5 है. अब 3/4 जो बचा है उसका 3/5 होगा. So into 3/4 and into 3/4. So this will come up to 3 3s are 9 and 5 4s are 20. 9/20 and 8/20 and 3 2s are 6. So 6/20 and 1/4. Denominators are not the same. So take the LCM. 20 9 21 1 6 are 6 and 4 5s are 20, 5 1s are 5. So the new ratio is 9:6:5. करेक्ट. अब उन्होंने बताया है he should bring 40,000 as capital for 1/4 share in future profits. एंड इसको कनेक्ट करो पॉइंट नंबर 6 से. द एक्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ ए एंड बी ओवर द ड्यू प्रोपोर्शन ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द फर्म इज टू बी ट्रांसफर टू द रिस्पेक्टिव लोन अकाउंट्स. सो सी फॉर 5 कैपिटल कितना है 40,000. सो 6 के लिए कितना होगा और 9 के लिए कितना होगा, वो क्लोजिंग कैपिटल आई विल हैव टू फाइंड आउट. देन जो जितना ज्यादा है उसको ट्रांसफर करेंगे हम लोन अकाउंट में. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट इन दिस क्वेश्चन. सो से 40,000 इज फॉर 5. सो व्हाट विल बी फॉर 6. 40,000 कैपिटल इज फॉर 5. Then what will be for 9? So 40,000 divided by 5 into 9, that comes up to 72,000. And 40,000 divided by 5 into 6, that comes up to 48,000. And 40,000 ये तो है ही. So these are the desired capital. दैट इज क्लोजिंग कैपिटल जो हमारा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो हमको इतना रखना है. जो एक्सेस है उसको ट्रांसफर करो पार्टनर्स लोन अकाउंट में. ओके, नाउ अगेन विद द नॉर्मल सोल्यूशन. अभी तक तो वर्किंग ही कर रहे थे. सो स्टार्ट नाउ. क्लोजिंग कैपिटल सबसे पहले आप मार्क कर लो. यू हैव जस्ट फाउंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल 72,000, 48,000 and 40,000.
how this has come, I'll tell you. Let's start with the question. Opening capital A and B, 1,50,000 and 1,50,000. So, two balance brought down, 150 and C का dash. Okay, अभी तक C है ही नहीं पिक्चर में. जनरल रिजर्व 62,000, इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में डिवाइड कर दीजिए. 37,200 and 24,800 is the general reserve. Okay, now creditors 1 lakh. Is there any adjustment for creditors? No. So keep it as it is in the balance sheet. Creditors 1 lakh. Okay. So finish with the liability side. Now the assets side. उससे पहले जो भी revaluation के items हैं, let's start marking them. Plant and machinery to be increased by 10%. So mark plant and machinery. Then a provision of 5% to be made on debtors. So debtors को mark करो. And stock to be valued at 1,20,000. So stock को mark करो. These three items will go in revaluation account. So let's start with the asset side. Cash 1 lakh. So opening balance of cash 1 lakh. कैश अकाउंट में गया. स्टॉक 1 लाख. सो एडजस्टमेंट है तो बैलेंस शीट में स्टॉक इन योर इनर कॉलम 1 लाख. एंड व्हाट डू दे हैव टू से? स्टॉक टू बी वैल्यूड टू 1,20,000 मीन्स अप्रिशिएट हुआ है उसका वैल्यू. सो एड 20,000 टू स्टॉक एंड ब्रिंग 1,20,000 in the outer column in the balance sheet. Stock 1,20,000 and 20,000 इंक्रीज हुआ है. एसेट का वैल्यू इंक्रीज होना अच्छी बात है. सो कोई भी प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में जाएगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के. सो बाय स्टॉक कितने से इंक्रीज हुआ? 20,000 से. स्टॉक इज डन. फर्नीचर नो एडजस्टमेंट एज इट इज लिखो 32,000 in your balance sheet. So furniture 32,000. Plant and machinery 2,08,000. Adjustment है. So in the inner column plant and machinery 2,08,000 and plant and machinery to be increased by 10%. So you have to increase, that is appreciate plant and machinery 20800 and take the amount to the auto column 2,28,800. Okay, and plant and machinery का वैल्यू इंक्रीज हुआ. अगेन टेल मी, प्लांट एंड मशीनरी इज एसेट. वैल्यू इंक्रीज होना अच्छी बात है. और जब भी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड में, डिक्रीज होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में. सो अभी इंक्रीज हो रहा है. गो टू रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड बाय प्लांट एंड मशीनरी एंड 2,800 से अमाउंट लिखिए. 2,800. ओके. नाउ डेटर्स 22,000. अगेन एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में डालो. डेटर्स 22,000. ओके. एंड नाउ डेटर्स का अ प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेड ऑन डेटर्स. सो लेस प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स. 22,000 का 5% 1,100 and subtract it. So in the outer column you get it 2,900. Okay, and 1,100 is the provision. Now debtor से मुझे पैसा मिलता, मैं उसी को कम कर रही हूं. So loss और profit, it is a loss. तो loss होते ही रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 2RDD 1100. Okay, this is also done. So
my adjustment regarding revaluations are done. Now entries for bringing in cash for capital etc. C should bring rupees 50,000 as his share of goodwill. So पैसा आया अंदर goodwill के लिए, entry will be cash account debit to goodwill 50,000. So सबसे पहले cash account debit to goodwill cash account में 50,000 and उसके बाद क्या करोगे उसका, so it is given clearly which is to be retained in business में ही रखना है. So cash account debit to goodwill account debit to old partners capital, that is A and B in their sacrifice ratio. Now what is sacrifice ratio? See, आप ध्यान दो कि न्यू पार्टनर का 1/4 शेयर अलग से दिया है. सो डू यू नीड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो. जब न्यू पार्टनर का शेयर अलग से देते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू द ओल्ड रेशियो विच हियर इज 3:2. डोंट वेस्ट योर टाइम इन कैलकुलेटिंग इट. ओके, सो गुडविल अकाउंट डेबिट to old partners capital. So here it is by goodwill 3:2 और A और B का डिवाइड करो गुडविल का वैल्यू को 30,000 and 20,000. Okay, so goodwill point is over. He should bring 40,000 as capital. So entry क्या होगा? Cash account debit to seize capital 40,000. Cash account debit to seize capital 40,000. Cash account debit to seize capital. So by cash, how much is he getting? 40,000. Okay, so this is also done. Let's start closing our revaluation account. कैसे close करेंगे? देखिए, credit side is heavier means profit है ज्यादा 40,800. 4,800 and 4,800. अब इसको डिवाइड करो अमंग ओल्ड पार्टनर्स. रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके, सो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2. डिवाइड अमंग A and B 23,820 and 15,880. क्रिस क्रॉस डेबिट है, कहां जाओगे? रिवैल्यूएशन का डेबिट है. इस प्रॉफिट या लॉस जो भी आता है यदि डेबिट में है तो उसको लेके आपको क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल जाना है. ओके, क्रिस क्रॉस जाओ. सो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 23,820 इधर इन ए एंड बी में 15,880. ओके, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने ये अमाउंट्स डाल दिया है. नाउ लेट्स टेक द टोटल ऑफ योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. 241,020. देन 2,10,680 एंड इसका तो 40,000 ही रहना है. C has got 40,000. Again, read point number 6. The excess of capital of A and B over their due proportion of sharing profits in the firm is to be transferred to their respective loan account. And please see the working again. आपने इसकी working की है. देखिए, A, B and C, the new profit sharing ratio you found 9:6:5, and according to that you found out the क्लोजिंग कैपिटल 72,000, 48,000 एंड 40,000. तो ये ही क्लोजिंग कैपिटल्स विल कम इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस कैरीड डाउन. ओके, सो इसको लिखें और जो डिफरेंस है दे आर स्पेसिफिकली सेड कि पार्टनर्स लोन अकाउंट में एडजस्ट कर दो. सो पहले ये अमाउंट जो है 72,000, देन 48,000 एंड 40,000. ये हमको क्लोजिंग बैलेंस रखना है. ओके, तो अभी ये जो टोटल है वो लेकर आइए वापस से. सो दिस इज 241,020
3,10,680 and 40,000. नाउ सब्ट्रैक्ट ये टोटल में से 72,000 वो कहां जाएगा, उसको पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट विच विल बी योर बैलेंसिंग फिगर 169,020. That is, this amount minus 48,000 will come to 1,62,680. एंड इसका सी के हिसाब से कैपिटल रखा है, तो इसमें तो कुछ होगा नहीं. ओके, सो नाउ हमको दो चीजें करनी है. अब इन बैलेंस शीट वी हैव टू मेक टू थिंग्स. एक तो लोन अकाउंट पार्टनर्स का, एंड द सेकेंड थिंग वी हैव टू डू इज कैपिटल ट्रांसफर. सो पार्टनर्स कैपिटल ए का कितना है 72,000 is closing, B 48,000 and C 40,000. So 48,000 and C 40,000. Take that in the outer column. The total comes up to 1,60,000. Okay, and partners loan A और B का लोन भी है अब हमारे पास. Loan is a liability. Loan taken is a liability. So 169,020 is your loan here, and 162,680. Okay, so the total comes up to 3,31,700. So take the total of the liability side, which comes to 5,91,700. Okay, now cash account close करो, because cash का figure चाहिए ना asset में. So we had opening balance, then C's capital and goodwill cash में आया. So the total is 1,90,000. That is only your closing balance 190. So cash 1,90,000. Okay. So take the total of the asset side 5,91,700. Balance sheet tallies, and this is for the solution. Remember, जब भी old partners का रेशियो दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड न्यू पार्टनर का अलग से आपको दिया गया होता है शेयर, दैट इज 1/4 ऐसे अलग से दे दिया, ना कि न्यू रेशियो दिया. फॉर एग्जाम्पल 3:2:1 ऐसे दिया है, तब आप कुछ नहीं कर सकते. यू विल हैव टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो. बट अलग से शेयर दिया है, देन ओल्ड रेशियो विल ओनली बी द सैक्रिफाइस रेशियो. दैट विल सेव योर टाइम. डोंट कैलकुलेट. ओके, दिस वॉज वन थिंग. एंड जब आपको एक पार्टनर के कैपिटल के बेस पे दूसरे पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट करना है, सो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिएगा. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यू कैन से कि 1/4 शेयर, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी रेशियो आता है वो उतना कैपिटल पार्टनर का है. इन दिस केस इट इज 40,000. सो व्हाट विल बी द अदर्स पार्टनर शेयर, उसको सबसे पहले यहाँ बाय बैलेंस कैरी डाउन में लिख दो, और अदर अमाउंट को जो लेफ्ट अमाउंट है, सी हाउ व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. इन दिस इट इज सेइंग रिस्पेक्टिव लोन अकाउंट्स में एडजस्ट करो. सो लोन में एडजस्ट करो. इफ इट सेज दैट कैश में एडजस्ट करो, देन एडजस्ट इट इन कैश. ओके.